you have to go through the article right now, and there are set of questions. So we are taking up two passages, okay? And while solving the passage, you will come to know about the dimension of the passage. So it's a quick exercise. I hope everybody is geared up. I'm going to zoom in, and then you will start reading. All right. So quickly start reading the article. अरे ये अभी भी आएंगी क्या यार? Everybody please, yeah. So have you read the first paragraph? Okay. So should I scroll to the next one? Please go ahead. Third paragraph. All right, so we'll do it again. First paragraph again. Quickly do it. All right, now we'll come to question number 1. Which among the following would be the correct approach to resolve the water stress situation in the country? A. To work globally in cooperation with other nations to forge a unique yet achievable climate action policies and ensure effective domestic incorporation of such policies. B. To ensure that proper legislative mechanism is developed that is capable of finding a lasting solution to the widespread and recurring problem of water stress. C. To work with Supreme Court and respective state governments in judicial administration of limited resource like water. D. To forge an immediate short term strategy which can easily be altered every year to suit the varying needs of different regions. क्वेश्चन को डिटेल में समझें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाटर स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए देखिए है, एक वर्ड है टू वर्क ग्लोबली इन कोऑपरेशन विद अदर नेशंस. टू वर्क ग्लोबली. सेकेंड वाले में है टू एंश्योर दैट प्रॉपर लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म इज डेवलप्ड दैट इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग लास्टिंग सोल्यूशन. सी इज टू वर्क विद सुप्रीम कोर्ट and respective state governments. Supreme Court and respective state governments. How can you work with both of them? It should come to your mind whether such an arrangement can be made possible or not. Okay, can be made or not.
in judicial administration of limited resources like water. And D is to forge an immediate, which means to frame an immediate short term strategy which can easily be altered every year, which means some degree of change you require each year to suit the varying needs of different regions. So this is a situation which is very common in India. Every monsoon, at the onset of monsoon every year, there is a fear among the people in the lower region of the valley that floods would occur, because monsoon brings rainfall and rainfall increases the flow of water in peninsular rivers. Now, with respect to that, this is an ongoing dispute right now that you will see between Tamil Nadu and Kerala over the reconstruction of Mulla Periyar Dam. Right? Good evening, Sanskriti. Okay. So, just a minute. Sir, please share the PDF. Can you share the PDF in the group? Okay. All right, just a minute. Then give me a quick minute over here. I'll share the PDF in the group so that you can read at your own convenience. All right. Just give me a quick minute. So, in the first question, it is about the correct approach to resolve water stress situation in the country. Okay. We'll start to look out for wherever water stress is mentioned in the passage. Anything nearer to water stress, anything where the solution is given, try to find it out. So here you will find that the Delhi government has used the Supreme Court. Now, where is the Supreme Court mentioned here? So, in option number C, you see to work with Supreme Court is mentioned. Now, this is also mentioned here. In the last month, the Delhi government moved the Supreme Court seeking an increased share of Yamuna's waters. All right. So, you see, government is filing an application before the Supreme Court. There are no other ways to go to Supreme Court than to file an application, and different, you can say, because Supreme Court is a court which is above water dispute tribunals. Now, what are water dispute tribunals? So there are a lot of water disputes which are going on right now. Just like today, we'll discuss the fresh row on Mulla Periyar Dam, and in this you will find that the state of Kerala is having a dispute with the state of Tamil Nadu. Right? Now, this is directly from the Hindu newspaper. So, the subject is interstate water sharing disputes. And based on that, I have given you a passage over here, okay, which is talking about water stress situation in India from critical reasoning point of view. So, we are going to discuss that. But beforehand, we have to solve this particular passage. Now, in this, it is mentioned. Now, you will find that in response on June, the court again asked the Himachal Pradesh to release 137 cusecs of water. It also directed the Haryana to facilitate the flow of this water to NCR. Now, in all this, you find the importance of the Supreme Court. But nowhere you can say that there is any other way to work with the Supreme Court, because you will find that directions are being given to the respective state governments. Right, by the Supreme Court. However, the Delhi government has complained that the neighboring state is not complying with the directive. Now, what does this indicate? That despite the intervention of the Supreme Court, okay, there are certain areas where orders are not being followed. So, there is the issue that Haryana says against Delhi, that water is getting evaporated in transit. What does it mean? Water is evaporating in transit. What does it mean? Delhi is complaining that Haryana is releasing less water. Okay? And Haryana is saying that we are releasing water, but before it is reaching to you, it is getting evaporated. Now you see this line, with the world warming up, the country needs a long-term policy to obviate such conflicts
and make sure people do not suffer water shortages. Now, this is where you can find answer to the first question. So, first of all, you can directly come to this point that the policy must be long term. As per the author, the policy must be long term. Now, we'll go back to the question and we'll try to see which option is talking about that. Here it is written to work globally in cooperation with other nations. So, we'll try to also look into this in the passage that wherever different countries' perspective is mentioned or not. Question in option B, you will find it is talking about a proper legislative mechanism capable of finding a lasting solution. Lasting solution means final solution, or you can say that is finally setting up, clearing the dispute between the parties to the widespread and recurring problem of water stress. So this particular statement is also addressing the viewpoints widespread and recurring problem of water stress. Now we have to see whether water stress is a recurring problem or water stress is a sporadic problem, like it happens in varied periods of time but not regularly. C, let's read C because we have read about Supreme Court to work with Supreme Court and respective state governments in judicial administration of limited resource like water. Again, we'll go back. With the world warming up, the country needs a long-term policy. Now, the word policy is here. Now, it should be very clear in your head that Supreme Court does not frame the policy. Okay, it is the government that frames the policy, and it is the parliament who can also frame the policy, who can also have a say in the policy. Policies of the government can be discussed in the parliament. Using this knowledge, you have to come to the answer. And somebody has already mentioned answer, B as the answer. And that appears to me as a legit answer. That, okay, yeah, it is talking about a long-term solution. शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी की वजह से इसको एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से पैसेज को पढ़ के, क्वेश्चंस देख के, बार बार बैक एंड फोर्थ वी गो टू द पैसेज. राइट, चलो सेकेंड पैराग्राफ को एक बार पढ़िए. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड इंपॉर्टेंस टू प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस. प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस, दैट इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द योजना जल जीवन अभियान, है ना. बट द हेल्थ ऑफ एक्विफर्स कंटिन्यूज टू बी नेग्लेक्टेड. अच्छा, आपको एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अब आपने बोला जल जीवन अभियान या जल जीवन मिशन. ये जल जीवन मिशन तो पैसेज में मेंशन नहीं है, तो हम कैसे ये असेस करें कि ये जल जीवन मिशन है या किसी और के बारे में भी बात कर रहा है. नो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी आपको पैसेज किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में नाम लिखा है या कोई एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस कर रहा है जो आपने न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में देखी हैं, तो उस पैसेज में आप अगर ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे जो आपको पता है कि टैप वाटर कनेक्शंस यानी कि कोई स्कीम होगी गवर्नमेंट की, और आपने जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ा तो आपको जल जीवन मिशन के बारे में आइडिया है, तो इस तरह की नॉलेज अगर आप यूज़ करते हैं तो ये गलत नहीं है, ये आपको हेल्प ही करेगा जब भी आप क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग में इस तरह के पैसेजेस को देखेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर्स से सोर्स्ड होते हैं. तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि फिक्शनल पैसेजेस हैं या एक फर्जी की सिचुएशन है जो क्रिएट की गई. कभी कभी रियल सिचुएशन रियल इश्यूज से आता है, तो रियल नॉलेज भी उसमें अप्लाई की जाती है. ठीक है, हालांकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. विल सी दैट, राइट. सो Narendra Modi government is applying importance. The country has historically tried to address water deficits by focusing on supply side parameters. Now, what would be supply side parameters? So, supply side parameters would be, as it is telling you, tap water connections, मतलब पूरा सिस्टम है, नल है, पाइप है, वो सब आपके घर तक आएगा. और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पानी की टंकियाँ जो हैं लोकल कॉलोनीज़ में ज़्यादा बनाएंगे. तो सप्लाई साइड पैरामीटर्स. इन लाइन विद सच एन अप्रोच, the center has asked states to prepare inventories of water bodies as a first step towards preventing the encroachment of these aquifers. Inventories of water bodies means the government, what is the assumption here? What can you assume? The assumption here is basically telling you
that government government had government have to keep accounts government have to keep accounts of water bodies. ठीक है, तो यहाँ पे एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग द इंक्रोचमेंट ऑफ दीज एक्विफर्स. सो नाउ व्हाट आर एक्विफर्स? व्हाट आर एक्विफर्स? Aquifers are underground sources of fresh water, isn't it? Underground sources of fresh water. Okay? There is a very little coordination between departments. Much more needs to be done to tackle long-standing shortfalls. There is very limited coordination between departments that deal with surface and groundwater. So you find, okay, अलग-अलग departments हैं, सरफेस वाटर के, ग्राउंड वाटर के, इरिगेशन सोर्सेज के और ड्रिंकिंग वाटर के. और ऑथर कह रहा है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है. द फ्यू, और फिर आप दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, द फ्यू वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द रिवरिंग स्टेट्स कम अपार्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट कम अपार्ट? अलग हो जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं, यूज़ में नहीं आते, किसी काम के नहीं होते. ड्यूरिंग शॉर्टेज सीजन्स. अब ये शॉर्टेज सीजन्स क्या हो सकते हैं, आप बताइए. Tell me what could be these shortage seasons. What do you understand by the term shortage seasons here? किसके शॉर्टेज के बारे में बात कर रहा है? Okay, summers. Okay, high temperature summers. When there is water crisis, during shortage of water, during shortage of rain, water shortage. Okay, drought. Okay, lack of rain. During shortage seasons, and it is talking about riverine states. So water कहाँ का पानी? ग्राउंड वाटर का पानी, नदी का पानी, बारिश का पानी, झरने का पानी. किसका पानी कम हो जाता है? वाटर स्टोरेज. Yes, river water. Okay. This is how you will reach to the precise point. Following me? This is how you reach to the precise point. Okay. Shortage seasons means when river water is in shortage. अभी के बारे में है तो अभी तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि नदियों में पानी कम हो गया. ठीक है. And plans to harvest rain water remain largely on paper. Now what is rain water harvest? What is the meaning of this? Rain water harvest. रेन वाटर हार्वेस्ट का मतलब क्या है? प्लान्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर. द गवर्नमेंट इज trying to persuade every citizen that if you are making a home, please try to collect rainwater and put it in the underground. Put it to the underground. Now it is telling you that it remains largely on paper despite floods and dry spells alternating with worrying regularity. अब आप रेगुलरिटी वर्ड के साथ ये वर्ड देख रहे हैं वरिंग. कोई भी चीज़ अगर रेगुलर होती है तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लड्स और ड्राई स्पेल्स ये तो ऐसे एपिसोड्स हैं जिनकी रेगुलरिटी वरिंग है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दिस इज हाउ यू विल assess that it is talking about two issues. Three issues rather. First, that there is an encroachment on aquifers. The government does not know how to protect these aquifers, which are underground sources of fresh water, and it has directed the state governments. It has directed the center has asked the state governments to keep a record of the water bodies of such aquifers. Second, it is talking about lack of coordination between departments of surface, groundwater, irrigation and drinking water. The states which have river water issues, right, they also have agreements which fall apart during such seasons. And last, it is talking about fourth point, that there is a plan, there is a policy to harvest rainwater, but it largely remains on paper. Nothing is done over that. And despite the fact that floods and dry spells, which means floods and droughts,
ऑल्टरनेट इंडिया में आते रहते, कभी ड्रॉट है, कभी फ्लड है, कभी ड्रॉट है, कभी फ्लड है, मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो इस पैसेज में आपको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ इंडिकेट करते हुए बताया है। अगर आप देखेंगे हर तरफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, रिवर वाटर के एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन दे रहा है। तो करंट गवर्नमेंट के ऊपर ये एक क्रिटिकल एंगल प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने और फेलियर ऑफ पॉलिसी बता रहा है। और ऊपर वाले पैसेज में इसमें लास्ट में इंडिकेट किया था कि कंट्री को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो सेंट्रल थीम पकड़ता हुआ चल रहा है यहाँ पे। पैसेज 1 में भी उसके बारे में बात कर रहा है और पैसेज 2 में आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे की स्थिति जो है, मौजूदा स्थिति जो है वो बता रहा है कि देख लो भाई, सरकार ने ऐसा ऐसा काम करा हुआ है। अब देखिए आगे, इन रिसेंट ईयर्स प्रोग्राम्स सच एज सही फसल कैंपेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना हैव टेकन अर्ली स्टेप्स टू एनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, गवर्नमेंट का फोकस वाटर जो का यूजेज जो एग्रीकल्चर पे है उस पे ज़्यादा है। तो जो स्कीम्स हैं वो देखिए, सही फसल कैंपेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना, इन्होंने एफिशिएंट यूज पे फोकस किया है। यानी कि आप क्या यहाँ पे एज्यूम करेंगे, व्हाट इज द जनरल अजम्पशन हियर, व्हाट इज द जनरल अजम्पशन इन दिस, जब कह रहे हैं कि अटल भूजल योजना हैव टेकन अर्ली स्टेप्स टू एनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे एजम्पशन ये है कि एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर में जो पानी का जो यूजेज है, द यूजेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर should be timely addressed by the government, should be timely addressed by the government. That is where you will find it is telling you taken early steps. Now this is where the author appreciates some of the schemes have taken early steps to encourage use of water in agriculture. Please understand again, use of water, misuse के बारे में बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ने यूजेज ऑफ वाटर के ऊपर वो भी एग्रीकल्चर साइड पे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। ऑप्टिमल यूज ऑफ इरिगेशन रिसोर्स इज एसेंशियल, समझिए, ऑप्टिमल यूज ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेज एसेंशियल। अब इरिगेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़रा आप बताइए क्या होते होंगे इरिगेशन रिसोर्सेज, व्हाट आर इरिगेशन रिसोर्सेज, व्हाट एसेंशियली इज इरिगेशन रिसोर्स। सोचिए, बताइए, व्हाट एसेंशियली इज इरिगेशन रिसोर्स। वाटर कहाँ का, एग्जैक्टली रिवर, ट्यूबवेल, कैनाल्स, राइट, डैम्स, दैट इज रिवर्स, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन रिसोर्सेस। तो हमारे यहाँ अंडरग्राउंड जो वाटर है ना, पीने का जो पानी है उससे सिंचाई हो रही है खेतों में, तो अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, वो भी जब तब मॉनसून एल नीनो की वजह से कम हो रहा है। तो अटल भूजल योजना उसी जगह पे टारगेट करती है ना। ये आज के ही इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, टुडेज इंडियन एक्सप्रेस। However, the demand side management of water resources also requires analysis of practices at the household and industrial levels. Now you will find here that the stress on water is from 3 sides. First, it is with respect to irrigation resources. Second, it is with respect to how the water is being used in the household, and third, how the water is being used in the industries. Now the data on per capita water availability for different users is sketchy. ठीक है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितना है उस डेटा पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ये स्केची वर्ड इतना बता रहा है। Emergencies such as lightest water shortage in Delhi usually precipitate knee-jerk responses. यहाँ पे पैसेज के एंड में हमेशा थोड़ा सा स्लो रीड करेंगे, ये ट्रिक याद रखिएगा। पैसेज के एंड में जब आप पैसेज एंड कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो हो जाना चाहिए, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपको मोस्टली एक तरीके से कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे होंगे। कोई भी अगर पैसेज होगा जो कि 300 वर्ड्स का है, देखिए आपके क्लैट में एक चीज़ आप देखेंगे कि जो एक्सर्प्ट्स होते हैं एडिटोरियल से भी,
तो वो एकदम एडिटोरियल के कहीं बीच का पार्ट होते हैं, एकदम एडिटोरियल के बीच का पार्ट होता है, और उसमें वो लोग लास्ट का कंक्लूजन कि कुछ 4-5 लाइन उठा लेते हैं कि आपको कंक्लूजन एक समझ में आ जाए। क्लैट के पैसेजेस को जब गौर से आप एसेस करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि पैसेजेस के लाट, मतलब आप क्वेश्चंस को मत जज करिए, आप सिर्फ पैसेजेस को उसके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये परफेक्ट पैसेज है। परफेक्ट पैसेज मतलब इट हैज़ अ इंट्रोडक्शन, इट हैज़ अ मेन बॉडी एंड देन इट हैज़ अ कंक्लूजन। क्लैट एग्जामिनेशन के पैसेजेस के बारे में आप, ये बहुत यूनिक चीज़ रहती है कि वो एक परफेक्ट पैसेज होगा 300-400 वर्ड्स का। ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको बीच में लाके कहीं छोड़ दिया। उसमें परफेक्ट इंट्रोडक्शन होगा सिचुएशन का, उसमें एरियाज़ होंगे, मेन पॉइंट्स होंगे, और एक परफेक्ट कंक्लूजन की तरफ आपको छोड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो ये आर्टिकल है, ये देखिए आपको स्टार्ट कर रहा है सारे प्रॉब्लम्स को बताया, और लास्ट में अपना व्यू पॉइंट कैसे रख रहा है कि इमरजेंसीज जब आती हैं, जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट नी जर्क रिस्पॉन्स रहती है। नी जर्क का मतलब एकदम से झटका लगता है लोगों को। कैसे? वेस्ट वाटर किया तो फाइन लगा देंगे, जबकि देर इज़ अ नीड टू इंसेंटिवाइज वाटर कंजर्वेशन, वाटर रीयूज एंड वाटर रिसाइकलिंग। गवर्नमेंट की पॉलिसी पे सीधा ये क्रिटिसिज्म है। विथ क्लाइमेट वैगरीज मतलब प्रॉब्लम्स इम्पेरलिंग द कंट्रीज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एक्विफर्स, द न्यू गवर्नमेंट should hit the ground running. The government, that is the new government, should hit the ground running, which means that it is an advice to the third term of the Modi government, right? That you need to find a long lasting solution to this. Now this is how the passage is concluded. So we'll come to question number 2. As per the author, which among the following is an important step that the government failed to address? Picked up? Okay. We have D. So note it down somewhere. Note it down. We'll see the answers in the last. लास्ट में चेक करेंगे आंसर्स। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलने में मज़ा आता है। लिख लीजिए 2 का D आप, ठीक है? सब लोग कह रहे हैं 2 का D। ओके। Which among the following, if true, is most likely to weaken the author's arguments? Picked up. Okay. थर्ड का B, थर्ड का B और थर्ड का D। थर्ड का B, थर्ड का D। ओके, 2 का A। ओके, विल कम टू 3 का B, 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 B। Okay. Vinayak, why are you saying D? I mean, if you notice the passage, nowhere it has been talked about public awareness. It is not talking about that. पब्लिक चूतिया ये कहीं नहीं बोल रहा है, ठीक है? सरकार नहीं कर रही है काम, ये बोल रहा है। तो जाने का ही नहीं उधर, तो पैसेज में दिया नहीं है उस स्कोप, उस जगह पे जाने का ही नहीं। बहुत सिंपल रखना है अपने इंटरप्रिटेशन को। स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ द पैसेज। ओके, राइट। Let's move to the question number 4. I hope everybody has picked up option B. I think, yeah, that would be correct because otherwise A, C,
is being discussed in the passage, and it is similar to what his author is saying. So we'll see in the last. Which among the following, if true, is most likely to strengthen the arguments of the author? The knee-jerk responses of the government are not appropriate. The government usually tackles the emergencies by punishing the civilians for trivial things. The supply side has more water allocation and utilization issues, as it is seen from the practice of agriculture. The supply side has more water allocation and utilization issues, as it is seen from the practice of agriculture. Now, all of the above is again given. So we'll be very, very cautious with this, because yes, that's very correct that if all of the above is given, it's an advantage in CLAT, that most likely it is going to be the correct answer. But now we'll be very, very cautious, at least in such questions. If all of the above is given, if you're able to make out any of the two statements, if you're able to understand two statements that have direct relevance with the passage, okay, it does not matter if the third statement is truly acceptable, or whether you are able to reach to the third statement or not, or the second statement or not, whatever that is. If two of these options are very close and they're relating to the passages and they are correct with respect to what is being asked in the questions, you can go ahead with all of the above. So let's see here what is the point. The knee-jerk responses of the government are not appropriate. We'll go back to the passage. We'll try to see where the knee-jerk responses have been mentioned. It is mentioned in the last, right? Emergencies के दौरान usually precipitate knee-jerk responses such as imposing fines for water when need is to incentivize water conservation, reuse, recycling. The knee-jerk responses are not appropriate. So, strengthening the argument, yes, the government usually tackles the emergencies by punishing the civilians for trivial things. Punishing the civilians is there in the passage, yes. Trivial things, okay, this could be the viewpoint of the examiner, you can say, that he is trying to ask you. So, B and A are related, I think so. So you are free to choose your answers. Let's see. Fourth का A, fourth का D. We already have varied answers. Fourth का A. Why not B then? We are not really focusing on C, but if you look at C, the supply side has more water allocation and utilization issues, as it is seen from the practice of agriculture. Yes, that is why the focus was there on agriculture. So C's can be directly inferred, and it is somewhere given, and it is strengthening the argument. Now what happens is, in strengthening arguments, okay, whatever options are written, they will go beyond the passage as well at times, because they are not the exact viewpoints being mentioned in the passage, but they are strengthening द मेन पॉइंट इन द पैसेज. तो एग्रीकल्चर साइड पे गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है, मतलब वहाँ पे इशू है, वहाँ पे इरिगेशन के वाटर के कंटेक्स्ट में हमें इश्यूज दिखाई देते हैं, राइट. तो वाटर यूजेज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की भी बात करी थी वहाँ पे पैसेज में. सो दैट इज़ हाउ यू विल कम टू दिस पॉइंट कि सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इट. सो दैट इज़ वाई आई वुड से कि यार मेरे जो पैसेजेस होते हैं ना, ये तुम्हारा जो कन्फ्यूजन होता है, जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी होती है कि तुम्हारे नॉलेज के कंटेक्स्ट में कि यार तुम कर पाओगे कि नहीं, उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ. उसका सिंपल मेरा एक रीज़न ये है कि मॉक्स में, इन लोगों के मॉक्स में कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं, और ये लोग पता नहीं इसको एड्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये मॉक्स परफेक्ट नहीं हो सकते, बट द पॉइंट इज़ कि इनको वेट करने वाले लोग नहीं हैं. बच्चे पैसेजेस बना के भेज देते हैं, जल्दी में ये लोग छाप देते हैं. क्वेश्चंस कुछ ऊट पटांग होते हैं, कुछ ऊपर नीचे होते हैं, और उन्हीं को ये लोग यूज़ करके कई बार दे देते हैं. तो उसमें आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. अच्छा, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल एक फंडा है, पास्ट ईयर पेपर का एकदम एक्यूट एनालिसिस,
कि भाई एग्जैक्टली पूछता क्या है, उससे ड्रिवन जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसी थीम से रहते हैं। तो आप अगर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो प्लीज़ बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर वेल गियर्ड अप, वेल सूटेड अप फॉर क्लैट, और तुम ये पेपर फोड़ के आओगे। समझ में आया? तुम नहीं फोड़ के आओगे साला तो कौन फोड़ के आएगा यार। मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अभी मैं जाता हूँ, क्लास व्लास लेता हूँ, तो मुझे बहुत कम ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं कि ये निकाल पाएंगे। और तुम लोग इसमें से उनमें से नहीं हो कि यू पीपल आर लाइक कि एवे ही हो गया। सबके नंबर बढ़िया आए हैं, ठीक है, सब 70 के रेंज वाले बच्चे हो, 70-80 के रेंज वाले बच्चे हो, तो तुम लोग स्मार्ट हो। तुम लोग को ये पैसेज सॉल्व करके अगर हो जा रहा है तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, सही चल रहा है। अब पैसेज 2 जो है ना, वो बहुत अलग टाइप का पैसेज है। जैसे ही नाम देखो आ रहा है जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। अब ये थोड़ा लिटरेचर साइड पे और इसके साइड पे जाएगा, तो जल्दी से फटाफट इसको पढ़िए। फंसे ना पैसेज में, पैरा 1 को फिर से पढ़िए। पैरा 1 की लास्ट लाइन को फिर से पढ़िए। फॉर अ राइटर विथ अ वेल नोन एवर्जन टू द प्री फैब्रिकेटेड फ्रेजेस दैट बेडेविल मॉडर्न इंग्लिश। नाउ क्वेश्चन कम्स, फॉर अ राइटर, what type of writer is she talking about? So she started with the name George Orwell, and definitely she is talking about him only. Okay, George Orwell is a writer who has written this famous book 1984, and in that, well, you should read that novel, well recommended novel, definitely you should read. Okay, but then you have to cover set of at least 10 novels also, बिकॉज नॉवल से पैक्स इंडिका से पूछा था यार, क्लैट में पैसेज दिया है तुम लोग किसी आर सेक्शन में, पैक्स इंडिका से, शशि थरूर की पैक्स इंडिका। तो मैंने बोला था ना हिस्ट्री की किताबें मैंने बोली थी, वही बात है यार, थोड़ा पढ़ना वढ़ना बोरिंग है। बट मैं बताऊँ, जैसे मेरे को क्लैट का ये जो पूरा एग्ज़ाम है, ये पैसेज जो है ये क्यों समझ में आते हैं, क्योंकि लॉ वॉ पूरा पढ़ लिया है, और उसके बाद 5 साल हो गया अखबार पढ़ते पढ़ते, 5 साल से लगातार अखबार पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर दिन न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो डेवलप हो जाती है इतने टाइम से। तो मेरे को लगता है कि यार ये बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से पल्स पकड़नी है आपको अखबार की और न्यूज़ की और इन सब ट्रेंड्स की। बट उसके बावजूद भी जब इस तरह के पैसेज आते हैं तो यहाँ पे एक स्किल सेट है, मतलब नॉवल रीडिंग का। यार शौक पाल लो नॉवल, अगर नहीं है ना रीडिंग का शौक नहीं है तो मन मार के नॉवल रीडिंग का शौक पाल लो। थोड़ा सा क्लासी भी लगता है। मैं बताऊं, आज के टाइम पे जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है, लेट्स गो बैक टू बुक्स। पूरी दुनिया सब कुछ डिजिटल एज में है, सब कुछ इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ रही है, लेट्स गो बैक टू बुक्स। तो आप उसकी आदत डाल लीजिए। आई एम टेलिंग यू दिस बाय गॉड, अगर आपने ये आदत डाली तो इस प्रोफेशन में आप बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, it's a skill set you don't need to have only for CLAT, but also if you want to be a top notch lawyer, if you want to be a skilled professional advocate. And this is a unique skill because हर कोई नहीं कर सकता है ये, to read novels and everything. अगर हॉबी नहीं है ना तो ये हॉबी डाल लो अच्छी किताबें पढ़ने की। मैं तो बताऊं, अगर तुम्हारे घर पे एक किताब का शेल्फ है, लेट से तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं तुम्हारे घर पे और तुम्हारे पास एक पूरा शेल्फ है जिसमें तुमने कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 किताबें रख रखी हैं, लगा रखी हैं, राइट, तो बढ़िया लगता है, एक फ़ील आता है। तो वो चीज़ आपके इस प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। पता है, जब ऑफिस बनाते हैं वकील लोग तो सबसे पहले पता है क्या करते हैं, जब से नया नया ऑफिस तुम खोलोगे जब,
तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम अपना एक डेस्क बनाओगे, उस डेस्क में तुम एक अपनी अच्छी सी बॉस चेयर रखोगे, एक बड़ी सी तुम्हारी कांच की टेबल होगी, उसमें कांच पूरा लगा हुआ होगा, उसके नीचे तुम्हारे पूरे जो जजमेंट्स हैं और ये सब है वो सब रखोगे, कैलेंडर वैलेंडर ये सब रखोगे। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है लॉयर की जो कबर्ड है, वो इंपॉर्टेंट होती है। नीचे से लेके ऊपर तक कांच का वो पूरा फैब्रिकेटेड बॉक्स होता है जिसमें बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के केसेस की ऑफिशियल जो बुक्स आती हैं हर साल सुप्रीम कोर्ट के केसेस की, वो लगाते हैं। 1950 से लेके अभी तक के सुप्रीम कोर्ट केसेस की पूरी वो आएगी, तो वो पूरी वॉल्यूम आप लगाएंगे। और वो पता है सेटअप करने में वो किताबें कितने की हो जाती है, 5-6 लाख की किताबें हो जाती हैं। वो लगाते हैं तब ऑफिस में फील आता है कि हाँ भाई वकील का ऑफिस है। तो यहाँ लगता है थोड़ा पैसा, पर यहाँ पे एक स्किल भी है कि अगर एक्चुअली में अपन ने वो नॉवल का भी एक बॉक्स बना रखा है, उसमें अपन ने नॉवेल्स लगा रखी हैं, वो नॉवेल्स हमने पढ़ी हैं, और आप लाइफ में कैलकुलेट करो ना आपने कितनी किताबें पढ़ी। मेरा तो रिकॉर्ड चल रहा है, मैं अपना पर्सनल रिकॉर्ड बता देता हूँ, 17 नॉवेल्स का है। 17 नॉवेल्स आई हैव रेड। ठीक है। मेरा अपना जैसे टारगेट रहता है कि यार साल भर में मेरे को एटलीस्ट 25-30 नॉवेल्स पढ़ लेनी है। लोग कहते हैं 100 नॉवेल्स पढ़ना चाहिए। जो सीईओ बनने के लिए जो हेल्प के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आते हैं उसमें वो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि एवरेज सीईओ 100 नॉवेल्स उसको रीड करनी चाहिए साल भर में। तो यार मज़ा है इन सब में, मतलब ये सब एक अलग अलग टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे इतनी किताबें पढ़ने वाले। आप पढ़िएगा जॉर्ज ऑरवेल, मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने तो क्लास 11th में पढ़ी थी। सच्ची बताऊँ तो पहले 50 पन्ने में कुछ समझ में नहीं आया था, पहले 50 पन्ने में कुछ समझ में नहीं आया था। फिर इसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा कि अच्छा किताब है किसके बारे में, थोड़ा विकीपीडिया पे गूगल किया कि अच्छा किताब, एक आइडिया लग गया किताब का कि अच्छा इसके बारे में, तो मेरा एक माइंडसेट बना उस किताब के लिए। बढ़िया नॉवल है। ये एक बात करता है कि ये इस किताब में बेसिकली बात की गई है, दिस बुक का जो मेन कंटेक्स्ट है, इट वाज फन सूटेड फॉर मी, राइट। तो इस किताब में जो मेन बात है कि वो जो गवर्नमेंट है ना, जो बिग ब्रदर्स हैं, वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं आदमी पे। ठीक है। तो आप चलिए पैसेज को पढ़िए, वो तो मैं फालतू का ज्ञान गणित आपको देने लगता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप पैसेज को पढ़िए। डज द वर्ल्ड ओ जॉर्ज ऑरवेल एन एपोलॉजी। क्यों भाई, क्यों? थिंक अबाउट दिस वाइल डूइंग अ गूगल सर्च फॉर द टर्म ऑरवेलियन and noting the frequency with which it has been used in the last 6 months to describe not just a system. फिफ्थ का बी, अच्छा आंसर भी बताने लग गए। फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी, अच्छा ओके। रुक जा भाई, समझा थोड़ा। चलो पैसेज टू एडिट, पैसेज टू पढ़ लिया आपने, सॉरी पैरा टू पढ़ लिया आपने, पूरा थम्स अप पढ़ लिया तो। फिफ्थ का डी, वाह यार तुम लोग को कोई मतलब नहीं है सब करने से। फिफ्थ का डी, बढ़िया 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 बढ़िया, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पैराग्राफ को आइए। हम्म, हाँ हो गया होगा मिस टाइप, कोई बात नहीं। फिफ्थ का डी, टोटालिटेरियन और एपोकैलिप्टिक और नाइट मारिश, सब अलग अलग वर्ड्स हैं बट एक ही तरह का इनका इंडिकेशन है। यूटोपियन का मतलब होता है जहाँ पे सब कुछ, कोई खुश है, सबके पास सब कुछ है, वेलफेयर है। ठीक है। तो आई थिंक फिफ्थ का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा डी के बारे में, दैट्स करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द व्यू पॉइंट्स ऑफ द ऑथर। आराम से पढ़िएगा, पैसेज को फिर से पढ़ना पड़ सकता है।
No, notice B, notice D. Okay, we'll go back, but we'll come to sixth ka. Let's see what are your answers. Sixth ka D, sixth ka D. How many? हाँ आ रहा हूँ. ओके जस्ट अ मिनट. फिफ्थ सिक्स का आंसर क्या है? ओके डी. चलो कीप अ चेक. ओके ये और बी क्यों नहीं है? व्हाई नॉट बी? व्हाई नॉट बी? ये बताओ. सर मर गया है ऑथर. राइट. So it is telling you that the authors find it repressive and distasteful that their names are used with prefabricated meanings for their viewpoints. This statement is saying कि authors को ऐसा लगता ही है. पूरे पैसेज में ये बताया गया है कि अगर होते तो ऐसा सोच रहे होते. अगर होते तो अपॉलॉजी पूरी दुनिया उनको दे रही होती. ठीक है. राइटर जो कि पूरी दुनिया के पूरे सिस्टम के बारे में अंड शंड लिखता रहा है, उसको खुद को अचंभित होगा. मतलब वो ही विल बी सरप्राइज्ड बेसिकली, है ना. ही विल बी सरप्राइज्ड कि भाई मैंने तो पूरे दुनिया में गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट ही लिखा है, सिविलियन के व्यू पॉइंट से चीज़ें बताई हैं, तुम्हारी बारे में लिखा है, आम आदमी के बारे में लिखा है, और यही आम आदमी मेरे वर्ड को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है. ऑरवेलियन का मतलब क्या है ना. तो ये जो सेंटिमेंट है, ये वाली चीज़ अपने को देखने को मिलती है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सेवेंथ, बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ द राइटर एंड कैरेक्टर लाइक विंस्टन स्मिथ, विच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ट्रू. सेवेंथ का बी, सेवेंथ का डी, सेवेंथ का बी. अच्छा सबका बी है. अच्छा सेवेंथ का बी है. बी बैंगलोर. अच्छा बी बैंगलोर. एलपीटी का देख रहे हो? आपदा को अफसर में बदलना. डिड यू सी दैट? एडवर्टाइजिंग ऑन टॉप. अच्छा इंटरव्यू भी आया है. अबे अपन थे ये सब पॉलिसी जब बन रही थी. मेरे को तो मज़ा आता है यार. बहुत सही है यार ये. लाइक गॉड लेवल पे मार्केटिंग है ये. मतलब कोई सोच नहीं सकता. एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट्स अब सोचेंगे क्लैट देने के लिए. आई एम टेलिंग यू दिस. सो दैट इज़ एक्चुअली मैं तुमको बताऊं. यस एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट. एंड आई बिलीव दैट ये बहुत अच्छी चीज़ है. नीट के बच्चों को अगर एक 6 महीने के बाद एक रिलीफ है. अब आप बोल रहे होगे कि यार कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा. अरे तुम पागल हो क्या? तुमको लगता है कि कोई अचानक से नीट की तैयारी कर रहा है, अचानक से क्लैट करने लगेगा तो हलवा है क्लैट ऐसे ही निकाल लेगा? अरे यार तुम लोग चोट खाए व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हो. तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचने का कि कंपटीशन बढ़ेगा. मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर इसको एक स्टूडेंट की तरह आप देख रहे हैं, मैं इसको मार्केट की तरह देखता हूँ कि कितना सही मूव है भाई. नीट में इतना स्ट्रेस है,
और एक्चुअली जब AIR 7 से इंस्पिरेशन लेंगे, AIR 7 ने क्या कहा था, पूरा कैप्चर करने की भाई कोशिश। भैया वो इस बार के AIR 7 जो है ना वो नीट के ही तो थे। अच्छा। वो ओ, अरिजीत बंसल जो है ना, ओके 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 इसकी ऐसी मार्केटिंग करता रहता है। ओके, राइट राइट। AIR 7 से इंस्पिरेशन लेंगे, AIR 7 इस वैसे इस एग्जामिनेशन में वही निकाल सकता है जिसका ऑलरेडी एक स्किल सेट रीडिंग वीडिंग का है, जिसका शौक है, ऐसे ही नहीं निकाल सकता कोई। नीट के एग्जाम के तुरंत बाद भैया सीधा वीडियो डाल दी, फ्रॉम नीट टू कैट। मैं था वहाँ पे जब ये वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब योजना सब मिल के बनाई है, समझ में आया? वही मैं तुमको बता रहा हूँ कि अब एक चीज़ होती है यार, एक होता है कि मैं बहुत मतलब इस चीज़ को पे मानता हूँ, बिलीव करता हूँ कि एक होता है कि आप खुद का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट, एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दो, ठीक है। एक ये चीज़ होती है कि आप इतने सफिशिएंट रहो, क्योंकि आप खुद से, और मार्केट में ऑनलाइन अगर आपको रहना है, जो मैं देख रहा हूँ तुम लोग का फ्यूचर है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्यूचर है बॉस तुम लोगों का। साइबर क्राइम, साइबर लॉ फ्यूचर है यहाँ पे। एक तो आप लोग देखेंगे, आप लोग जब लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लेबर लॉज भी हैं आपके पास, मीडिया लॉज भी हैं, बैंकिंग लॉज भी हैं, बट कंपनी लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये इमर्जिंग एरिया है। इसका पूरा का पूरा जो गढ़ है वो या तो बैंगलोर में है, अब या तो आपके गुड़गांव दिल्ली के सब बेल्ट में है, या मुंबई पुणे में है। इस और बहुत कम मतलब चेन्नई में, जो चेन्नई में हम लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, नॉर्थ नॉर्थ वाले लोगों को, तो बैंगलोर और दिल्ली में मल्टीपल फर्म्स हैं, मल्टीपल ऑफिसेज हैं जो इन सेगमेंट्स में काम करते हैं, जहाँ पे भी IT सेक्टर की चीज़ें हैं। सो दिस इज़ वेयर यू सी यू कैच द पल्स। अगर आप पल्स पकड़ के चलेंगे तो आप कर सकते हो। और ऑनलाइन में बहुत इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, लॉट ऑफ कॉस्ट। मतलब एक नॉर्मल सा अगर आपको प्रॉपर एक टेस्ट पेपर बनाने का ऐप बनवाना है तो उसका पता है साल भर का खर्चा कितना आता है। एक नॉर्मल टेस्ट का तुम्हें ऐप बनवाना है जिसमें कैपेसिटी हो कि वो 5,000 7,000 बच्चों को का टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट करा सके, उसमें नॉर्मल खर्चा कितना आता है साल भर का? 37 लाख एक ऐप मेंटेन करने में। उसके पीछे वो पूरी एजेंसी होती है, पूरी टीम होती है। तो बहुत खतरा है। मतलब या तो आप खुद का ब्रांड बना लो, या आप किसी ब्रांड को बड़े बनने में सहायक की भूमिका निभा लो। तो मेरे को तो ये दिखता है कि भाई नंबर 1 नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो भाई रेस है, बहुत भयंकर तगड़ी रेस है। और मैंने तो क्लोजली सभी टीम के साथ बहुत हद तक काम किया है। आई हैव वर्कड विथ लीगल एज, आई हैव वर्कड विथ क्लाउड पॉसिबल, आई एम ऑल्सो वर्किंग विद लॉ प्रेप। तो मेरे को तो यहाँ पे तो बहुत स्कोप दिखाई देता है कि आपको बहुत बहुत कम टाइम पे, बहुत कम टाइम में आपको ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 50 शहरों में ये सेंटर आपको इसके दिखाई देंगे। इनके जो होता है ना कि जो मालिक जो होता है, जो फाउंडर होता है, उसके हिसाब से आपका सोच चलता है। अब ये चीज़ आप देखो, आप ऐसे कह सकते हो कि यार मार्केटिंग है, कैपिटलाइजिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन डिसरप्टिव फोर्स है, डिसरप्ट करता है पूरा मार्केट। तो ये चीज़ बहुत मतलब मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज दैट इज़ वाई आई एम इन द इंडस्ट्री सिंस पास्ट 5 ईयर्स। मतलब मैंने 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। आप लोग को तो, आप लोग एज ए स्टूडेंट देखते हो, मैं मार्केट की तरह देखता हूँ कि यार क्या, क्योंकि पता है तुमको एक पॉइंट की क्लैट का सब कोई स्टार्ट कर रहा है, सब कोई, बहुत सारे आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे NLTI एक चीज़ स्टार्ट हुई, उसको लीगल एज ने टेक ओवर कर लिया, मतलब एक तरह से लीगल एज के साथ वो सब्ज्यूम हो गया। तो तुम लोग के जो लीगल एज के मॉक्स होते हैं वो NLTI के मॉक्स होते हैं, वो लोग बनाते हैं NLU वाले बच्चे, लेकिन उसको वेट करने वाले लोग बहुत तगड़े हैं मतलब। तो पता नहीं उनसे ऐसे ही मिस्टेक फर्क कैसे हो रही है। बट ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो देखने को आज मेरे को मिली। मतलब आई वॉज सो हैप्पी टू सी इट कि पल्स जो है वो कैच करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 7 का जो आंसर है, आप लोग क्या कह रहे हैं? बी,
The idea of giving primacy to privacy of an individual is not new but is being taken as important these days. हो सकता है, ठीक है. Let's move ahead. Let's move ahead to the next option. 8th का D. 8th का D. सभी 8th का D कह रहे हैं. कैसे भाई? The apprehensions of dystopian future where information can be disrupted to bend the truth has been in existence since very long. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अगर आप ऐसा पैसे सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर तो सही तो है यार, सब सही चल रहा है. टेंशन नहीं लेने का, लगातार मॉक लगाते रहने का, एनालिसिस करते रहने का, हो जाएगा क्लैट. बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है. अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. बढ़िया है. 8 में से 8 किसी का आया है? 8 out of 8. Okay, good. Very good. Very, very good. How many people? 1, 2, 3, 4, 5. 5 people. 8 out of 8. Nice. Very good. बढ़िया है. तो यार इन लोग के मॉक में तुम लोग काहे नहीं नंबर ला पाते हो? क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ये अच्छा 80 के पार आ रहे हैं किसी के? 80 बेकार मॉक्स बना रहे. 80 के प्लस में आया है किसी का? अभी तक 80 मॉक्स में नहीं आया ना? आया. हाँ, LPT के ऑल इंडिया में आया था. LE के मॉक्स में यस. GK के नहीं होती, दैट्स वाई LPT में नहीं. ओके ओके. हाँ यार, किसी भी एक कोचिंग के 80s में टच कर रहे हो बस ठीक है. दैट्स द पॉइंट. कहीं के भी लगाओ. एक ही तरह के मॉक अगर कोचिंग में लगाते रहो तो उसके तरीके की प्रिपरेशन हो जाती है. मैथ्स में प्रॉब्लम है, LPT में कोई टीचर नहीं है. ठीक है. ये तो यार ये सब इसका आप कुछ नहीं कर सकते. दैट समथिंग इज़ कांट बी हेल्प्ड इफ़ेक्टिवली. तो हमारे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट जहाँ पे है अपन उसी जगह पे पहुँच जाएंगे कुछ दिनों में तुमको दिखाई देगा, समझ में आएगा. बहुत कुछ होता है यार, पता है. अब मैं यहाँ पे जब मैं क्लैट, अब मैंने देखा कि यार एक कोचिंग है आई क्वांटा करके, उसने यार क्लैट मिनी मॉक करके एक पेज बना दिया. क्लैट मिनी करके वो मॉक्स देने लग गया. एक छोटी सी कोई कोचिंग है आई क्वांटा. सारा आइडिया चुरा लिया यार, बहुत बेकार लगा. 12 नंबर है, अगर 4 या 5 भी आ गए तो हो सकता है. अच्छा मॉक में ठीक है. ये चलो अभी सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स कम टू दिस पॉइंट. ड्रीम मीम बनाकर तूने मेरा ड्रीम चुरा लिया. आप भूल गए क्या जनवरी फरवरी वाले वर्ड्स हमारे? डैम भैया वो. अच्छा एक मिनट, स्पेलिंग मैंने गलत पढ़ी है शायद. अच्छा इट्स डैम. वो थोड़ा एक्सेंट वाला है. हाँ समझ गया. वो मैंने ड्रीम पढ़ लिया. ओके. सो I am happy that you people are doing good. 8 out of 8 is a good score and that is a moment of joy. Great. So keep up this thing because most of the people, those who are there preparing right now, are confused or baffled. They don't know. They have just started. They don't know where to go and you people are way ahead, must say. So continue the stride, continue the endeavors. Just maintain some discipline. 8-hour schedule, that is very, very important. Try to wake up early. Try to start your day early by 6 or 7 a.m. Start the day with your revision of current affairs, whatever you have studied. Try to make notes out of everything. Have a copy that you can rely on before your examination. Okay. Then there are certain books that I would always advise, like Lucent GK is there. You can continuously read it. Read one novel. Try to read at least 50 pages there. And then followed by that, what you can do is you can pick up any UPSC magazine, for example, that I am giving you Next ISK magazine, right? So you can definitely download that Next ISK magazine and you can try to read the current affairs from there as well. And in that, try to make sure that you are not trying to remember everything,
but you're trying to go through at least 10 topics, 20 topics per day and trying to make notes out of it, then there are the various ways to go about it. Like if there is text and context of the Hindu, try to note it down. And then there is if you're reading Indian Express, you're making notes of e-explained, always is helpful game, and that is where you can save a lot of time. सो 8 घंटे का आपका स्टडी शेड्यूल होना चाहिए अब, ठीक है। अब बस बात 150 दिन की है, 8 घंटे का स्टडी शेड्यूल अपना बना लीजिए और 8 घंटे स्टॉप वॉच पे अचीव करने की कोशिश करिए। दिन का बस यही टास्क रखिए, ठीक है। और बोलिए, किसी को बोलिए चेक रखने के लिए आप पे, बोलिए कि कोई आपको रोज़ 10 बजे रात को फ़ोन करके पूछे कि 8 घंटे आज हुए क्या स्टॉप वॉच पे, स्टॉप वॉच को स्क्रीनशॉट भेजिए कि यार कितने घंटे हो गए। इस तरीके से खुद को एक डिसिप्लिन में बांधिए, बस 150 दिन की बात है, हो जाएगा, ठीक है। द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, यहाँ पे जो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, व्हाट वी हैव टू नो इन दिस इज, नोटिस दिस इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, ओके। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, द पॉइंट इज दैट द डैम इज सिचुएटेड इन केरला, but the operation of the dam is with Tamil Nadu. The operations of the dam is with Tamil Nadu. And in this, the matter is that there is this expert appraisal committee of Ministry of Environment. इसने अपनी 18 मई की मीटिंग को कैंसिल कर दिया। केरला ने इससे रिक्वेस्ट करी थी कि आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है अपने को नहीं पता, लेकिन आगे देखेंगे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको कराना है मुल्ला पेरियार के नए डैम में, उसके लिए आपको नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुझे देने चाहिए, राइट, आपको बताने चाहिए। इसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी मंत्रालय की, सरकार की, इसलिए मिलने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया, राइट। मीटिंग वॉज कैंसल्ड एट 11th आवर का मतलब यह है कि आखिरी समय में मीटिंग को कैंसिल किया बिना रीजंस बताए। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इरिगेशन डिज़ाइन रिसर्च बोर्ड ऑफ केरला के, जो नई दिल्ली पहुंचे थे मीटिंग के लिए, उनको ये बताएगा कि मीटिंग को थोड़ा सा टाल दिया गया है, डेफर कर दिया गया है। वाई वॉज द मीटिंग कॉल्ड? तो मुल्ला पेरियार एक मेसनरी ग्रेविटी डैम है, राइट। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु है, और ये डैम कंटेस्टेड है दोनों स्टेट्स के बीच में, लीगल लेवल्स पे भी और गवर्नमेंटल लेवल्स पे भी। लीगल लेवल्स पे आप जब बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और मामला गवर्नमेंट लेवल पे भी चल रहा है, राइट। आपके पास शीट है, आप इसको एक बार ज़रा प्लीज़ फटाफट रीड करिए इस आर्टिकल को, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, राइट। और मेरे को ये बताइए कि जब स्टेट्स के बीच में क्या कोई फॉर्मर एग्रीमेंट हुआ है जिसका वायलेशन हुआ है? आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट टू ज्वाइन यू। हाँ, तो आपने इसको देखा, इसमें अब मेन पॉइंट देखेंगे कि तमिलनाडु का जो ऑब्जेक्शन है क्या है कि केरला जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 128 ईयर डैम को जो आपको दोबारा बनाना है उस पर तमिलनाडु ने रिएक्ट किया है, शार्प रिस्पॉन्स दिया है, राइट। और
जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे आप कि क्यों तमिलनाडु को ऑब्जेक्शन है। तो तमिलनाडु एक्चुअली इस वाटर पे, इस डैम से रिलीज़ होने वाले वाटर पे रिलाई करता है इरिगेट अपने कुछ एरिड यानी सूखे रीजन्स, एंड दीज आर मदुरई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थेनी, राइट। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है भूपेंद्र यादव को, राइट, और उनसे कहा है कि डायरेक्शंस इशू करिए टू द ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ EAC टू ड्रॉप द एजेंडा ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द मीटिंग। तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट किया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो केरला के कहने पे आप बना रहे हैं उस डैम के लिए वापस से, क्योंकि ऑपरेशन किसके में है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से पूछो तो पहले कि वो डैम के लिए क्या करना है, राइट। तमिलनाडु ने क्या आर्ग्यू किया, ऑब्जेक्टेड टू द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी एजेंडा दैट अगर आपने ऐसा किया, केरला का जो प्रपोजल है वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का वायलेशन है, तमिलनाडु कह रहा है ये, राइट। मिस्टर स्टालिन स्टक टू द कंसिस्टेंट पोजीशन ऑफ तमिलनाडु। ये बताता है कि तमिलनाडु की हमेशा से यही पोजीशन रही है दैट द एग्जिस्टिंग डैम वॉज रिपीटेडली फाउंड टू बी सेफ बाय वेरियस एक्सपर्ट कमिटीज एंड द टॉप कोर्ट हैड पास्ड ऑर्डर्स टू दिस इफेक्ट ऑन 2 occasions, and the top court has passed orders on this effect on 2 occasions। तो तमिलनाडु कह रहा है कि ये जो डैम है ये सेफ है, इसमें दोबारा से इसके असेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, केरला को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, केरला को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि केरला ये वाटर होल्ड करता है। जो एरिया है, जो नदी है पेरियार नदी, वो केरला से निकलती है, उसका पूरा जो पानी है वो तमिलनाडु से फ्लो करते हुए जाता है ना, तो ये इसके लिए केरला के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो तमिलनाडु वेंट ऑन टू आर्ग्यू कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये स्पेसिफाई किया था कि इसकी परमिशन रिक्वायर्ड है ऐसा कोई स्टडी करने के पहले, अब आपको लीगल पॉइंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर रिवरिंग स्टेट्स हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट है तो जहाँ से पानी निकल रहा है और जिस स्टेट से बह रहा है, दोनों स्टेट्स को एक पार्टी बना के दोनों का व्यू पॉइंट लेंगे, और इसमें तमिलनाडु की परमिशन जो थी वो रिक्वायर्ड थी। इट ऑल्सो कंक्लूडेड कि केरला का जो डिसीजन है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराने का एक नए डैम के लिए, और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का डिसीजन जो है कि इस रिक्वेस्ट फॉर परमिशन वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इसमें एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने इस चीज़ को मीटिंग में डिस्कस किया तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो ड्रॉप्ड हिंट्स दैट इट वुड इनिशिएट लीगल एक्शन। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है ये, तमिलनाडु बोल रहा है, इंक्लूडिंग फाइलिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशंस इफ द ऑर्डर्स ऑफ द टॉप कोर्ट वर नॉट अधेयर टू ऑन दिस इशू। इसीलिए मीटिंग को क्या कर दिया एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने, एकदम से डेफर कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु ने कहा कि भैया देखो तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की का वायलेशन कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा तुमने अगर तुमने बिना मेरे से पूछे टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिन्यू किए अगर, और एक असेसमेंट करा दिया। तो मतलब मुल्ला पेरियार डैम जो है उसको केरला क्या कह रहा है, केरला कह रहा है भैया इसको दोबारा बनाओ, इसको दोबारा बनाओ, प्रॉपर बनाओ, और तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं नहीं डैम सेफ है, बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है, तुमको इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, और अगर करना भी है तो मुझसे पूछ के होगा, मतलब मेरा भी से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। केरला की क्या पोजीशन है चलिए समझते हैं, इसमें क्या स्टेट आर्ग्यू कर रहा है। केरला क्यों कह रहा है कि हमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सटेंसिव करने की ज़रूरत है। कुछ समझ में आया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो केरला गवर्नमेंट है, राइट, उसने नए डैम का डिज़ाइन भी फुलफ़िल कर दिया है, और जो तमिलनाडु है, राइट, तमिलनाडु ने जो एपेक्स कोर्ट में आर्ग्यू किया है, देखिए आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं
आर्ग्यू किया है, had earlier dismissed the interlocutory application of Tamil Nadu objecting to the earlier terms of reference for an EIA and the clearance issued by National Board for Wildlife for conducting environment impact assessment. यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए क्लियरेंस दे दिया था, राइट। तमिलनाडु ने इस परमिशन पे क्या नेशनल बोर्ड वर्ल्ड NBWL के कहने पे जो उस डैम का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जा रहा था, उसका जब मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो तमिलनाडु ने उस केस में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करी थी। मतलब उस केस में एक नेसेसरी पार्टी बनने की कोशिश करी थी और NBWL के डिसीजन को इलीगल कराने की कोशिश कर रहा था। ये वाला जो एप्लीकेशन तमिलनाडु का था, इसको एपेक्स कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। मतलब एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु की रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो ऑर्डर है, या हम कह सकते हैं जो क्लियरेंस इशू किया है, वो वैलिड है। ये केरला के ऑफिसर्स, केरला गवर्नमेंट जो है ये आर्ग्यू कर रही है। केरला के ऑफिसर्स ने ये आर्ग्यू किया कि तमिलनाडु यूनियन गवर्नमेंट को मिसलीड कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऑर्डर के बारे में नहीं बताया है। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन जो तमिलनाडु ने 2015 में फाइल करी थी, जिसमें डायरेक्शंस थे, तमिलनाडु कह रहा था कि केरला गवर्नमेंट को बोलिए कि वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ना कराए, रिस्ट्रेन केरला गवर्नमेंट, और NBWL के ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाए। ये एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी एज इनफ्रक्टुअस 13 अप्रैल 2016 को। ये केरला का आर्ग्यूमेंट है, किसके सामने? कोर्ट के सामने। तो जो कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स है वो हमारे सामने लिखी गई हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही उतर के आपके क्लैट के पैसेज में आ जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, जो ये वाला पैसेज है ये ईजी नहीं है। इसमें तमिलनाडु की कौन सी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, तमिलनाडु क्या कह रहा है? तमिलनाडु दो बात कह रहा है। पहला कि केरला गवर्नमेंट को उस डैम का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराना चाहिए, और दूसरा जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये क्लियरेंस इशू कर दिया है EIA कराने के लिए, उसको भी डिसमिस करवाइए, ऑर्डर को भी डिसमिस करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब सवाल ये आता है कि ये डैम की बात हो रही है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का ये क्लियरेंस क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। तो अब बात होती है कि ये केरला को टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं क्यों चाहिए। तो केरला का हिसाब से अब क्या कहना है, ज़रा उसको एक बार प्लीज़ डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पे काम करने की। जिसको भी ऐसी चीज़ें असेस करने में प्रॉब्लम होती है वो इस एक्सरसाइज को डिलीजेंटली करेगा। जो यूजुअली कर लेते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आप कर लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेन पॉइंट ये है कि वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये पेरियार टाइगर रिजर्व है जो कि एलिफेंट रिजर्व भी है, और इस जगह पे NBWL का क्लियरेंस जो है रिक्वायर्ड है, राइट। क्योंकि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू में जो केरला ने प्रेजेंट किया है, राइट, उसके अंदर अंडरगॉन मेजर चेंजेस। अब 800 करोड़ का डैम बनाया जा रहा है जो कि और महंगा हो सकता है। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड एज अ प्रपोज साइट, ये प्रपोज साइट किसने दी है? केरला ने दी है। वो एक टाइगर रिजर्व में है। तो केरला का जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो केरला का प्रपोजल है कि ये प्रोजेक्ट, ये डैम ऐसा बनना चाहिए, अब 126 साल पुराना डैम है, उस प्रपोजल में एरिया टाइगर रिजर्व का आ रहा है। तो इसीलिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जो कि
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी कराएगी, वरना टाइगर का तो घर खत्म हो जाएगा, टाइगर का तो जंगल खराब हो जाएगा, राइट। सिंस द फॉरेस्ट लैंड हैज़ टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू डैम, समझिएगा बात को, जंगल का ज़मीन यूज़ होगी, ये एक नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी है। मतलब आप ये समझ में आता है कि डैम कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। एंड फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ काटने की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसीलिए यूनियन मिनिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट दोनों की परमिशन रिक्वायर्ड है। इस तरह का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना विल हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड वाइल अप्रोचिंग वेरियस एजेंसीज फॉर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, दे आर्ग्यू। कंसेंसस का क्या स्कोप है? तो केरला जो है वो 1996 से इस बैटल में इन्वॉल्व है। लीगल कंटेंशंस बिटवीन द टू स्टेट्स वियर्ड अराउंड द सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग डैम, लेकिन फिर 1998 में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होने लगी, जो कि बोथ स्टेट्स ने फाइल करी, उन्होंने जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, और जो पानी के लिए एक्ट्स बनाए थे दोनों स्टेट्स ने, उनको इलीगल ठहराया। इसी तरीके से टॉप कोर्ट के सामने बहुत सारे मोर लीगल बैटर्स जो हैं मे कम अप। Kerala, which has been preparing the ground for a new dam, would require the consent of Tamil Nadu to construct a new dam as directed by the top court in one of its orders in 2014. तो ये अपने लिए लीगल प्रिंसिपल बन के आता है कि परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वायर्ड। सुप्रीम कोर्ट विल बी द राइटफुल बॉडी एंड हु हैज़ गिवन ऑलरेडी ऑर्डर्स, राइट। टॉप कोर्ट ने बोला कि तमिलनाडु का भी जो परमिशन है, कंसेंट है, वो रिक्वायर्ड होगा। केरला अपने नए प्लान के साथ आगे बढ़ सकता है अगर तमिलनाडु एग्री करे। उसके बाद शीट को आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग वाटर डिस्प्यूट्स के जो नेम्स हैं वो बता दिए हैं, किन किन के बीच में ये डिस्प्यूट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, कब से चल रहे हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इनके बारे में आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, ये लीगल केस इनके ऊपर रीड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से आर्टिकल मिलता है तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। मेन बात क्या है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग हमेशा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे तो इंटर स्टेट इशूज़ के लिए देयर इज़ अ पर्टिकुलर पार्ट जो कि आपको दिखाई देगा, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है, पॉलिटिकल मैटर भी है। अब उसी तरीके से ये टॉपिक 2 है, ये आपके लिए गुड रीड है, आप इसको रीड करिएगा। हम इसको नेक्स्ट क्लास में, जैसे टुमारोज़ क्लास, इन टुमारोज़ क्लास आई विल ट्राई टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ यू हैव टू स्टडी द बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, the linguistic bifurcation of states. So what are we going to do tomorrow is we are going to study a particular chapter from NCERT which is talking about linguistic organization of states, and that will help us to build necessary, will help us to form an idea कि हमारे यहाँ पे राज्य कैसे बने, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम उसी आर्टिकल या टॉपिक रीडिंग में चेक करेंगे। मीनवाइल आपको रेड में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस आर्टिकल में, वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑथर के मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आप उनको जब रीड करिएगा तो समझिएगा कि अच्छा इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। ये एडिटोरियल है जो कि पब्लिश हुआ था बहुत रिसेंटली, इसीलिए आप इसको रीड करेंगे। ये जून का एडिटोरियल है ना, आपने रीड किया है तो अच्छी बात है। अब आप हाईलाइटेड वाले को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। वेल डन, कीप इट अप।